Hello students, today we are going to study a very important topic from basic mathematics, determinant. Now we will start with this topic with its definition. First of all, determinant. This topic is asked for 4 to 6 marks in MSBT examination. So this is very important and simple topic if we study. Now we will start with the definition here. What is mean by determinant? Now definition of determinant is in this way. It is an arrangement of numbers in equal number of horizontal and vertical lines enclosed in two vertical lines. That arrangement is called as determinant. Now here what is mean by determinant is it is an arrangement of numbers. What arrangement of number? In equal number of, this is very important, in equal number of horizontal means in this way, and horizontal and vertical lines, and it is enclosed in two vertical lines. That system is called as determinant here. Now to understand this definition, I will write equation here. Suppose a1x plus b1 is equal to 0. Okay, and a2x plus b2 is equal to 0. This is system of equation here. And if we eliminate x from this equation, so we will write x coefficient in the first equation is a1, then second is b1. Now this is our first line. Okay, and for equation 2, x coefficient is a2, we will write below a1, and b2 will be written below b1. Okay, and it is enclosed in two vertical lines. So this system is called as determinant because here there are equal number of horizontal and vertical lines. Now how many horizontal lines are there? This is one line and this is two line, and this horizontal line is called as row 1. This is first row, and similarly this is called as row 2 of the determinant. And here these are vertical lines a1 and a2. These are element of first vertical line, and this line is called as column 1, and this is column 2. Means determinant is nothing but system of number enclosed in two vertical line, and here number of rows should be equals to number of column. Now in this determinant, if you observe, there are 2 rows. So I will write 2 here, and how many columns are there? 2. So this determinant is of order 2 by 2. ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? It is determinant of order 2 by 2. Now here a1, b1, a2, b2, these are what elements of, these are called as elements of determinant. Elements of determinant. Okay, and it is denoted by. Now determinant is always denoted by capital letter. For example, D, or determinant of A. This is also a symbol of determinant. Then delta. In this way, we can understand topic of determinant, and this was nothing but definition of determinant here. Now we will study some of the examples of determinant of order 2 by 2 here. Here we have taken some of example of determinant of order 2 by 2. Now let's see how to solve this type of determinant here. आता हे काय 2 by 2 चे determinant आहे. ते कसे सॉल्व करायचे ते आपण बघूया तिथे. Is equals to. Now to solve this type of determinant here, we will first of all start with this. Okay.
5 will be multiplied to minus 10. So 5 into minus 10 minus 6 into 2. क्या किया हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है. स्टार्ट कहाँ से करना है? लेफ्ट कॉर्नर से. 5 into minus 10 is equals to, I have written here, बीच में कौन सी साइन है? माइनस. माइनस साइन इज ऑलवेज देयर. एंड माइनस 50 minus 6 into 2 is 12. Now there is a subtraction sign on both the numbers, so we have to take its addition. Addition is 62, and which sign I have to put here? Minus, because 50 जो है वो बिगर नंबर है आणि जो मोठा नंबर है त्याचा आपण साइन घ्यायची. सो इट इज माइनस. ओके, सो एडिशन किया, 62 आया और साइन कौन सी लगाई? माइनस की लगाई है. इज इक्वल्स टू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माइनस 6 इंटू 8. ये माइनस 6 इस नंबर को मल्टीप्लाई होगा. माइनस 6 इंटू 8, माइनस 6 इंटू 8. ओके, बीच में कौन सी साइन होती है? हमेशा माइनस की साइन है. 7 इंटू 1 इज, आई विल राइट इन दिस वे, 1 इंटू 7. अभी इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? माइनस 6 इंटू 8 माइनस 48. Minus sign is there. 1 into 7 is 7. 48 minus 48 minus 7. Its addition will be equals to 55. Okay? और कौन सी साइन लगेगी यहाँ पर? माइनस की. In this way we can solve determinant of order 2 by 2. 2 by 2 का डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस की साइन और ये दो नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, नाउ दिस इज थर्ड एग्जांपल. अभी इस एग्जांपल में डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 0 की है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? हियर इज 0. और हमें पूछा गया है कि फाइंड x इफ दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल? हियर वी विल एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट x into 5. so x into 5 minus 2 into 1 is equal to 0 is given to us. Okay, अब यहाँ पे 5x minus 2 is equal to 0. देन मल्टीप्लीकेशन किया है, x और 5 का मल्टीप्लीकेशन 5x होगा minus 2 और फाइनली 5x is equal to 2. If we shift this minus 2 to that side, it becomes positive, and finally x is equal to 2 upon 5. So in this way we can solve this type of example here. Next example. Now to solve this example, this is example like third example we have solved here. In similar way we can solve this type of example also. So here we will start with this determinant 6x to 7 is equal to what is given to us? Its value is 0. Start solving this. 6 into 7 का मल्टीप्लीकेशन यानी ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करेगा. 6 into 7 minus sign is already there. x into 2 का मल्टीप्लीकेशन 2x is equal to 0. So 6 7s are 42 minus 2x is equal to 0. मल्टीप्लीकेशन किया 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 42 आता है. 42 माइनस, अभी ये माइनस है, इस साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू 2x. बट फाइनली हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x की अगर वैल्यू चाहिए तो ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो इस साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? डिवीजन में जाएगा. सो 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू x. मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्ट होकर डिवीजन में गया और 2 2s are 4. सो दिस इज डिवीजन इज 2 and 2 2s are 1. So our answer will be 21. So our x value will be equals to 21. So in this way we can solve easily second order determinant here in this way.
Okay, now we will study how to solve determinant of order 3 by 3. Now let's start with the determinant of order 3 by 3. So I will write here determinant of order 3 by 3. Now we are going to study determinant of order 3 by 3. Means here number of rows should be 3 and number of columns are also 3 here. For example, I will take one example. One representation of example will be in this way: A1, B1, C1. Now to understand this concept, we will take this example as a in letters, means A1, B1, C1. This is first row. A2, B2, C2, A3, B3, C3. This is determinant of order 3 by 3. Okay. Now from where we have taken these constant here, because here suppose we take a1x plus b1y plus c1 is equal c1z is equal to 0. Second equation a2x plus b2y plus c2z is equal to 0. And third equation is a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. Now suppose this is a system of equation here, and this system of equation can be written in the form of determinant. How it can be written as a form of determinant? यहाँ पे हमने किया क्या है कि x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखे, उसके बाद y के कोएफिशिएंट सेकेंड कॉलम में, और z के जो कोएफिशिएंट्स थे वो कहाँ पर लिखे हैं? थर्ड कॉलम में. In this way, we can represent this system of equation in the form of determinant. Okay. Now, question is how to solve this type of determinant, that is of order 3 by 3. 3 by 3 के determinant को कैसे solve करना है? तो देखते हैं अभी यहाँ पे हमें फिर एक बार ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, मीन्स A1 से स्टार्ट करेंगे. तो A1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है. अगर ये हाइड किया और ये भी कॉलम हाइड किया तो बचता क्या हमारे पास? B2, C2, B3, C3. So I will write this determinant B2, C2, B3, C3. Okay. Now there is always which sign? Minus sign is there. Now we will move on to second element. Second element कौन सा है? फर्स्ट रो का B1. अब यहाँ पे B1 लिखेंगे. अभी B1 जिस रो में है, कौन से रो में है? फर्स्ट रो में. और कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में. वो डिलीट अगर करेंगे तो क्या बचेगा? A2, C2, A3, C3. So A2, C2, A3, C3 in this way. ये हो गया 2 by 2 का डिटरमिनेंट. और लास्ट में हमें क्या करना है? इसी वे से C1 के लिए भी लिखना है. ये है C1. C1 किस रो में है? फर्स्ट रो में है, रो 1 में है. और कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है. तो वो डिलीट अगर करेंगे तो क्या बचते हैं? A2, B2, A3, B3. सो आई विल राइट A2, B2, A3, B3. ओके. अभी यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या है? एक 2 by 2 का डिटरमिनेंट है, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो A1 लिखेंगे into the bracket B2 will be multiplied to C3. B2 into C3. Always start with the left corner. Minus sign C2 into B3. ये हो गया this determinant का सॉल्यूशन. ओके. उसके बाद B1 A2 into C3 minus C2 into A3. A2 C3 को मल्टीप्लाई हुआ, माइनस की साइन
C2 किसको मल्टीप्लाई हुआ, A3 को, प्लस C1 into the bracket, अभी यहाँ पर भी A2 will be multiplied to B3, A2 B3 minus B2 into A3. In this way we can solve determinant of order 3 by 3. फिर से एक बार देखते हैं कि 3 by 3 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट से. A1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो A1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, दैट विल बी डिलीटेड एंड रिमेनिंग 4 एलिमेंट आई विल राइट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म. माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर, माइनस B1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, डिलीट करना है, हाइड करना है. क्या बचता है, A2 C2 A3 C3. ये B1 की रो हाइड हो गई है और ये B1 का कॉलम भी हाइड हो गया है. सिमिलरली प्लस साइन इज देयर, प्लस C1. अभी यहाँ पे ये रो C1 जिस रो में, कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो हमें वो डिलीट करना होगा और ये जो 4 एलिमेंट बचे हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं. और नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हमें ये तीनों डिटरमिनेंट अगर हम सॉल्व करेंगे और अगर यहाँ पे नंबर्स है तो हम इसका कैलकुलेशन करके आगे इसका एग्जाम का आंसर इजीली निकाल सकते हैं. Now we will study actual examples of order 3 by 3 here. So I will write one example here. Solve 1 minus 1 2 4 2 9 0 1 6. Suppose this determinant is given to you and you are asked to find out its value. So how we will solve this? We will see. अभी यहाँ पे करना क्या है, स्टार्ट करना है 1 के साथ. 1 से अगर स्टार्ट करना है तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, उसको डिलीट करना है. 1 यहाँ पे लिखा, ये बचे हुए 4 एलिमेंट लिखेंगे 2 9 1 6. माइनस साइन इज देयर. अभी इस 1 को कौन सी साइन है वो उसके साथ लिखनी है, -1. अभी -1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट करेंगे तो क्या बचता है, 4096 4096. ओके. एंड लास्टली थर्ड एलिमेंट को कौन सी साइन होती है, हमेशा प्लस, यानी जो कुछ भी साइंस को है वो एज इट इज हमें कैरी करनी है. अगर इस 2 को माइनस भी साइन रहती थी तो हमें कौन सी साइन लेनी थी, माइनस ही लेनी है. ओके. प्लस 2, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, बिकॉज 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हमें कैंसिल करना है. और क्या बचता है हमारे पास फिर, 4 2 0 1. ओके. 2 इस रो में है, इस कॉलम में है, तो ये 4 एलिमेंट 4 2 0 1 अगर रिटर्न विद द 2. ओके. अभी यहाँ पे इसको आगे अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज इनटू द ब्रैकेट. 2 into 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 12. माइनस साइन देनी है, 9 into 1 is 9. ओके. माइनस माइनस इट बिकम्स +1 into the bracket. 4 into 6, 4 6 are 24 माइनस 0 into 9. अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर. सो आई विल राइट हियर 0 प्लस 2 into 4 into 1 is 4 माइनस 0. ओके. उसके बाद ये ब्रैकेट अगर सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट से अगर सॉल्व करते हैं तो 1 into the bracket. 12 minus 9 is 3 plus 1 as it is, 24 minus 0 is 24 plus 2 into 4 minus 0 is 4. Now bracket multiplication solve करेंगे. 1 into 3 is 3 plus 24 plus 8. Now 8 plus 3 is 11. 11 plus 24, it is equals to
35. In this way we can solve determinant of order 3 by 3 here. Okay. Now another example of determinant of order 3 by 3 we will take. We will take one example from book only. Suppose we take this example 3 minus 5 minus 1 1 3 5 minus 5 1 3. इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एक्सपांड द डिटरमिनेंट. Expand the determinant. This type of example is asked for 2 marks. So let's see how to solve this example here. Now यहाँ पे किससे स्टार्ट करना है, हमें 3 के साथ हमें स्टार्ट करना है. तो ये 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो कैंसिल होगा और कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, ये 4 एलिमेंट 3 5 1 3. So 3 is there is equal to 3 3 5 1 3. ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद ये 4 एलिमेंट बचे हैं, वो हमें किस में लिखने हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने हैं. उसके बाद कौन सी साइन है, इसको माइनस. ऑलरेडी फॉर्मूला में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, लेकिन 5 को कौन सी साइन है, माइनस की. सो वी हैव टू टेक दैट साइन ऑल्सो विद दैट. तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर ये मिडिल के नंबर को अगर माइनस की साइन है तो वो अलग लिखनी है माइनस साइन, और ऑलरेडी जो फॉर्मूला की माइनस साइन है वो यहाँ पे रहेगी. ओके. अभी ये -5 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, दैट विल बी डिलीटेड. तो क्या रहेगा फिर 1 5 -5 3. क्या किया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया, तो बाकी 4 जो बचे थे वो यहाँ पर लिख दिए हमने. और लास्ट में कौन सी साइन होती है, प्लस की साइन, लेकिन एलिमेंट को कौन सी साइन है, इस एलिमेंट को माइनस की. तो आई विल राइट इन दिस वे -1 एंड -1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये और ये रो और ये कॉलम डिलीट अगर करेंगे तो 1 3 -5 1 बचेगा. तो 1 3 -5 1. ओके. अभी अगर आगे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 3 into the bracket 3 3s are 9 minus sign 5 into 1 is 5. Next minus minus plus 5 into the bracket 1 into 3 is 3 minus 5 into -5 is 25. So our answer will be -25. I should have written the bracket. यहाँ पे क्या किया हमने, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 को प्लस की साइन आ गई, 1 into 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 3 आया. उसके बाद बीच में कौन सी साइन होती है, 2/2 के डिटरमिनेंट में माइनस, और ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी माइनस आया. तो अगर माइनस आया तो हम इसमें लिखते हैं राउंड ब्रैकेट में. ओके. प्लस माइनस इट बिकम्स माइनस, और इनटू द ब्रैकेट 1 है यहाँ पर, 1 into 1 is 1 माइनस साइन इज देयर. ये मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3 into -5 is -15. So I will again write in the round bracket. Okay. आगे इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले ये जो ब्रैकेट्स है वो हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. तो 3 into 9 -5 is 4 प्लस 5 into the bracket, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 25. ओके. ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. यहाँ पर कौन सा साइन है, -1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. 1 minus minus plus 15. Okay. Now again simplify this equation. 3 4s are 12 plus
5 into 28 माइनस, अभी यहाँ पे 1 plus 15 is 16, कौन सी साइन आएगी इसको, माइनस 12 प्लस, नाउ 5 into 28, अगर करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 5 8 जा 40, 4 is the 5 into 2 is 10, 10 plus 4 is 40. ओके, सो इसका मल्टीप्लीकेशन 140 आया माइनस 16. देन हियर एडिशन सब्ट्रैक्शन 12 माइनस 16 अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 140. 60 हमने क्या किया यहाँ पर 12 और 16 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो एडिशन किया, सॉरी, इसका एडिशन आया माइनस 4 प्लस 140 एंड फाइनल आंसर अगर 140 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 136 विथ प्लस साइन. इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 हियर. Revise that example, this example. यहाँ पर क्या था, ये example is given to us और हमें इसको expand करना है इस डिटरमिनेंट को. तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं 3 से. 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे, बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट यहाँ पर लिखे. उसके बाद ये मिडिल को कौन सा साइन होता है, माइनस का साइन है, माइनस साइन, और ऑलरेडी ये 5 को भी माइनस साइन है, तो ये दोनों माइनस साइन हो गए. माइनस 5 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है, बाकी बचे हुए ये 4 एलिमेंट यहाँ पर आ गए. ओके, 1 माइनस 5 5 3. ओके, उसके बाद ये माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी प्लस साइन होता है, ये माइनस 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे तो ये 4 बचेंगे एलिमेंट, यहाँ पर लिख देंगे. उसके बाद ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया, 3 3 are 9, 5 into 1 is 5, माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस, 3 into 1 is 3, 5 into minus 5, मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 25, बट ऑलरेडी डिटरमिनेंट में क्या होता है, माइनस की साइन होती है बीच में, तो ये 2 माइनस साइन हो गए. उसके बाद ये माइनस 1 प्लस माइनस इज माइनस 1, 1 into 1 is 1, 3 into minus 5 is minus 15, और ऑलरेडी 2/2 का डिटरमिनेंट में माइनस की साइन है. वन सेकेंड, तो ये 2 माइनस साइन की वजह से आगे के स्टेप में क्या हो गया, ये प्लस हो गया. तो ये 9 minus 5 is equals to 4, देन माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस, सो 3 plus 25, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. उसके बाद इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो 12 प्लस ये एडिशन हो गया 28 इंटू 5 विल टेक हियर 140, और ये तो डायरेक्टली 16 हो गया. और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आता है, 136. इन दिस वे we can solve this type of example here very easy.